Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Gemini Ascendant and how the month of October 22 is going to pan out for the Gemini Ascendant people. Now Gemini is an ascendant that is ruled by Mercury, and Mercury is considered a prince in the language of astrology. These people love to talk, and if ascendant lord is well placed, then they are also very intelligent. But the key part about Gemini ascendant people is that they are excellent observers and can progress a lot in life just by observing the mistakes that are committed by other people and not repeating them. Now, coming to the transit of October 22, Ascendant Lord will continue to pass through the fourth house of home environment, properties, and peace of mind. In this case, the advantageous part about Gemini ascendant people is that Mercury is going to turn direct from the retro position on 1st of October. So this is a good news because the ascendant lord is turning direct on the very first day of the month. This is an excellent position for Mercury because ascendant lord placed in the fourth house would mean native will experience peace of mind and domestic happiness in the month of October. This ascendant lord is also getting a beneficial aspect from Jupiter. So all the people who have been planning to do activities that are related to fourth house, amongst the most important one is to buy some kind of an immovable property, then October would prove to be a favorable month for them. In general, also, all these people who have ascendant lord in the fourth house in the birth chart are people who experience the peace of mind throughout their lives. So again, this favorable position of Mercury will make sure that the month of October proves to be beneficial for Gemini ascendant people. Now, as I said earlier, Jupiter is aspecting the fourth house, but it is also aspecting the second house through its fifth aspect. Jupiter also owns the seventh house of business, and the seventh house lord sitting in the 10th house is generally considered a good position. In this case, Jupiter is retrograde in the month of October, and that is why people will experience some kind of a trouble on the business front in the month of October. It is suggested to them that they should not consume non-vegetarian food in the month of October. This will bring some kind of a benefit for them at the workplace. Let us also look at Mars. Mars is passing through the 12th house till 15th of October, and after that it will move to the first house. So till the first half of October, Mars is going to aspect its own house of debt, health, and service. And people who are in service will continue to see good time at the workplace in the month of October because Jupiter will also continue to aspect the sixth house through its ninth aspect. Aspect of Jupiter as well as the Lord of the sixth aspecting its own house would mean that people will continue to experience good health in the month of October. And all those people who are in service, the best dates for them in the month of October are 12th and 13th of October and 30th and 31st of October. These 4 days will prove to be very beneficial for people who are in the jobs or in the service related sector. The second half of October will see the Mars jumping into the first house, and this Mars will provide a lot of energy to Gemini ascendant people since the sign that is placed here in the first house is that of a Mercury, and Mercury and Mars are not on the favorable terms with each other. So these people will experience a lot of energy and anger, and they need to control this anger in the second half of October. We will also have a look at Venus. Venus is the lord of fifth house as well as 12th house for the Gemini ascendant. Venus is going to pass through the fourth house, and it is going to remain combusted due to its close proximity with Sun. Virgo sign also happens to be the sign of debilitation for Venus, and Venus will be placed here till 18th of October. Now, there are certain things that are happening in the month of October which will prove to be slightly problematic for Gemini ascendant people. Ketu is present in the fifth house, and after 15th of October, Sun will also move to its debilitated state in the fifth house in Libra sign. So, overall, all those who are involved in the activities that are related to fifth house, such as education, creative activity, and speculators, they should be very cautious in the month of October. To further create another problem, the fifth house lord Venus is also in its debilitated state in the fourth house, thus creating a negation for the fifth house.
After 18th of October, Venus will move to its own sign, and as a result, the second half, or rather the last 12 days, will bring some kind of a relief to the people who are doing activities that are related to fifth house. If you're a student, then the best time for you will be between 9th to 11th of October. Overall, this month of October will remain challenging for all those people who have professions that are related to the fifth house. Now, Rahu is passing through the 11th house. Rahu is also passing through the star of Venus in the month of October, and as a result, the bad results of Venus will once again be showcased by Rahu. So, again, people who are in the line of education, speculation, or any creative related activity should watch out, because this Rahu will also not give them the desired benefit despite being posited in the 11th house. This 11th house Rahu also showcases some kind of a cheating from your social circles or from your close friends. So one should also watch out for that. You should also shun any kind of a monetary dealing that you have with your close friends, otherwise it will backfire. Saturn also continues to be in a retro position. This Saturn will remain in a retro situation till 22nd of October. And again, eighth house lord in eighth, the best way to utilize this eighth house Saturn is to do activities that are related to the eighth house. So if you have a research kind of a mindset, or if you happen to be in the area of research, then this transit of Saturn will prove to be very beneficial for you. Apart from this, if you are in actuaries or in taxation, then also this position will continue to provide you the benefits. Otherwise, the best way to deal with such kind of a Saturn is to look at all the hard facts and then make your decision, not to go by the gut feeling which people of Gemini ascendant usually go along with. This Saturn will also make you work hard on the relationships that you have with your in-laws, and if you are looking for some kind of an inheritance, then you will also face delays in inheritance part. There are also certain days when people need to be cautious in every month. These are the days when Moon passes through your 6th, 8th, and 12th house. It is mostly said that whenever Moon passes through these houses, the decision taking capability of the person gets influenced and people end up taking wrong decisions. So, in the month of October, the days where people need to be very careful are 1st of October, 16th and 17th of October, and 28th and 29th of October. So these are the 5 days when Gemini ascendant people need to be cautious in the month of October. Overall, this will prove to be a challenging month on certain aspects, especially if you have professions that are related to creativity, education, and speculation. But this ascendant lord in the fourth house will make sure that you have peace of mind throughout the month of October. So that's the summary for Gemini ascendant people. If you have liked my video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मिथुन लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना किस तरीके से साबित होगा। देखिए, मिथुन लग्न के लोगों का लग्न स्वामी बुध होता है, और अगर बुध की स्थिति लग्न कुंडली में बहुत अच्छी होती है तो ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान पाए जाते हैं। मिथुन लग्न के लोगों को वैसे भी बातें करने का बहुत शौक होता है, तो आप बहुत से मिथुन लग्न के लोगों को मार्केटिंग की लाइन में देखेंगे, सेल्स की लाइन में देखेंगे। ये लोगों को बातें करके बहुत जल्दी प्रभावित कर सकते हैं और उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। जो सबसे अच्छी क्वालिटी मिथुन लग्न के लोगों में होती है वो ऑब्जर्वेशन की पावर होती है। मिथुन लग्न के लोग अगर अपने आप को सुधारने पे उतर आए, यानी कि मैं कैसे प्रगति करूं जीवन में, उस एटीट्यूड के साथ अगर काम करें, तो ये लोग बहुत जल्दी तरक्की करते हैं, क्योंकि ये दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। इनकी ऑब्जर्व करने की पावर से इनको ये पता लग जाता है कि इनको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से ये जल्दी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन उनको उस चीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ता है। अगर ये अपने में ही मस्त रहें तो फिर तरक्की करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक बार हम अक्टूबर 2022 के गोचर की तरफ दृष्टि डालते हैं। मिथुन लग्न के लिए लग्न स्वामी बुध इस महीने में भी चतुर्थ भाव से भ्रमण करते हुए पाए जाएंगे। और 1 अक्टूबर को, क्योंकि सितंबर के महीने में बुध वक्री हो गए थे, तो 1 अक्टूबर से ये फिर से मार्गी हो जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनेगी मिथुन लग्न वालों के लिए, लग्न स्वामी का महीने के पहले दिन में ही मार्गी हो जाना। तो यहाँ पर ये बुध व्यक्ति को
आपका पीस ऑफ माइंड देता रहेगा, व्यक्ति को मानसिक शांति मिलेगी अक्टूबर के महीने में भी। और यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि पड़ती रहेगी लग्न स्वामी पे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति कहलाती है। जब भी लग्न स्वामी चतुर्थ भाव में होता है और उस पे अगर किसी भी बेनिफिक का यानी मृदु प्लैनेट का दृष्टि पड़े, चाहे वो गुरु हो या शुक्र हो, तो ये बहुत अच्छी स्थिति कहलाती है। तो ये महीना अच्छा निकलेगा, क्योंकि लग्न स्वामी ही बहुत अच्छी स्थिति में है, तो बाकी चीजें भी चाहे कितनी भी बुरी हो, व्यक्ति उनको पॉजिटिविटी से ही देखता है। यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि गुरु की दृष्टि फिर से चौथे भाव को पे पड़ के उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी या व्हीकल लेने का भी मन है तो भी आप इस महीने में उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि शुक्र स्वयं ही व्हीकल्स का कारक होता है। तो आप कोई नई गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वो भी अक्टूबर के महीने में आप खरीद सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। एक नज़र गुरु पे भी डालते हैं। देखिए, गुरु चतुर्थ भाव को देख के, जैसा मैंने बताया, प्रॉपर्टी तो व्यक्ति को खरीदने में हेल्प करेगा ही, लेकिन पंचम दृष्टि से गुरु का द्वितीय भाव पे पड़ेगी, नवी दृष्टि छठे भाव पे पड़ेगी। तो गुरु अपनी दृष्टियों से व्यक्ति की स्वयं के कमाए हुए धन को और व्यक्ति की हेल्थ को या दुश्मनों से भी उसको बचाता रहेगा। यहाँ पर गुरु सप्तम भाव का और दशम भाव दोनों का स्वामी बनता है। तो सप्तम भाव का दशम भाव में होना यूं तो अच्छा कहलाता है, लेकिन गुरु अभी वक्री हैं अक्टूबर के महीने में, तो जितना व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाएगा अक्टूबर के महीने में। और जितने भी लोगों के बिजनेस हैं वो भी कुछ ना कुछ अड़चन महसूस करेंगे अक्टूबर के महीने में, क्योंकि गुरु वक्री होंगे उसकी वजह से। इसके लिए एक जो रेमेडी बोली जाती है वो ये है कि आप नॉन वेजिटेरियन खाना बंद कर दीजिए। अगर आप नॉनवेज का सेवन नहीं करते हैं अक्टूबर के महीने में, तो आप देखेंगे कि आपके कार्यस्थल पर भी इसका प्रभाव आपको अच्छा पड़ता हुआ दिखेगा और लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है अगर वो ये टोटका फॉलो करते हैं तो। मंगल 12वें भाव से भ्रमण कर रहे हैं, तो 15 अक्टूबर तक मंगल 12वें भाव में ही रहेंगे। तो यहाँ से ये सातवीं दृष्टि से स्वयं के भाव को ही देखेंगे, जो कि हेल्थ का भाव है और शत्रुओं का या बीमारियों का भी भाव है। तो यहाँ पे गुरु की भी नवी दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से व्यक्ति की हेल्थ महीने में भी 15 अक्टूबर तक अच्छी चलती रहेगी। 15 अक्टूबर के बाद मंगल प्रथम भाव में मूव कर जाएंगे व्यक्ति के। यहाँ पे बुध की राशि पड़ती है मिथुन, और बुध का और मंगल की आपस में दुश्मनी है। तो यहाँ पे मंगल ऊर्जा तो बहुत देंगे, लेकिन व्यक्ति को नेगेटिव साइड की तरफ लेके जाने का प्रयत्न करेंगे, यानी बहुत अनकंट्रोलेबल टाइप का गुस्सा आना जिसे कहते हैं वो होगा मिथुन लग्न वालों के साथ। और यहाँ पे उनको एक ही हिदायत दी जाती है, वो है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मंगल कई बार तैश में आके व्यक्ति का बहुत कुछ बिगाड़ देता है। व्यक्ति में अनकंट्रोलेबल गुस्सा आता है, जिसकी वजह से कई बार वो ऐसी बातें कर बैठता है जिसके लिए बाद में उसको बहुत पछताना पड़ता है। यहाँ पे मंगल जब तक प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तब तक भी सर्विस के भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और मंगल के हटने के बाद भी गुरु तो नवी दृष्टि से छठे भाव को देखते रहेंगे। तो जितने भी लोग सर्विस में हैं उनके लिए भी अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि उन्हें अपने कार्यस्थल पे बचाती रहेगी। अगर आप सर्विस में हैं तो सबसे बेहतरीन दिन अक्टूबर में 12 और 13 अक्टूबर और 30 और 31 अक्टूबर हैं, जिनमें आपको कार्यस्थल पे प्रशंसा मिलने की उम्मीद रहेगी। और द्वितीय भाव में, जैसा मैंने बताया, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। एक नज़र शुक्र पे डालते हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए शुक्र पंचम भाव के और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव से जाना, यानी कि पंचम का निगेशन। अब यहाँ पे क्या स्थिति बनती है वो देखिए। तीन तरह से पंचम भाव का तेल निकलना जिसको हम कहते हैं वो होगा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठेगा 18 अक्टूबर तक। पंचम भाव का चतुर्थ में जाना, पंचम का निगेशन, ऊपर से चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी नीच स्थिति में होगा, क्योंकि कन्या में शुक्र नीच राशि के हो जाते हैं। और इसके बाद 15 अक्टूबर के बाद सूर्य पंचम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाएंगे। ये स्थिति हर तरह से बेकार है। अगर आप पंचम भाव से रिलेटेड व्यवसाय करते हैं, अगर आप कलात्मक चीज़ों में ध्यान देते हैं, आप कलाकार हैं या आप स्पेक्यूलेटर हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये दिन आपके लिए शुरू के 18 दिन बहुत भारी होंगे अक्टूबर के, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठ के व्यक्ति को पंचम भाव से जुड़ी हुई चीज़ों से काटेगा। अब यहाँ पे सूर्य भी आ जाएगा अपनी नीच राशि में। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद जब शुक्र भी पंचम भाव में आ जाएंगे अपनी राशि में, तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। यानी पहले 18 दिन तो व्यक्ति के लिए मुसीबत के होंगे, लेकिन बाद के 12 दिन 19 से लेके अक्टूबर के आखिरी 31 तक इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का नीच भंग हो जाने की वजह से स्थिति पलट जाएगी। तो यहाँ पर केतु, सूर्य और शुक्र, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ बनेगा। तो यहाँ पर
स्थिति 18 अक्टूबर के बाद थोड़ी सी बेहतर होगी शुरुआती महीने के मुकाबले में। तो जितने भी लोग पंचम भाव से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई भी कला के क्षेत्र में है, या फिर आप शेयर बाजार से संबंध रखते हैं, तो ये बहुत महीना आपको सावधानी से गुजारना पड़ेगा। आप कोई भी छोटी मोटी गलती करते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी बन के वापस, जिसे हम बैकफायर करते हैं, वो होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 9, 10 और 11 अक्टूबर 3 दिन आपके लिए सबसे अच्छे हैं। लेकिन ओवरऑल ये महीना पंचम भाव से जुड़ी हुई चीजें अगर व्यक्ति करता है तो उसके लिए मुश्किल भरा समय है। राहु भी 11वें भाव में विराजमान है और वो अक्टूबर के महीने में शुक्र के ही नक्षत्र से भ्रमण करेंगे, तो ये फिर से शुक्र के ही परिणाम आपको देंगे, और शुक्र नीच अवस्था में है, तो राहु भी आपको कोई बहुत अच्छा परिणाम देने वाला नहीं है अक्टूबर के महीने में। राहु का 11वें भाव में बैठना वैसे बहुत अच्छा कहलाता है, अगर खास करके वो 3, 6 या फिर बार बार राशि में हो तो। लेकिन यहाँ पे वो मेष की राशि में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति को आपके परिवार, आपके मित्रों से या सोशल सर्कल से धोखा मिलने की उम्मीद रहती है। राहु चीटिंग का कारक है, और आपके सोशल सर्कल में या मित्रों के थ्रू चीटिंग होते हुए देख सकते हैं अक्टूबर के महीने में। तो अगर आप कोई भी पैसे का लेन देन करते हैं मित्रों के साथ, सोशल सर्कल के साथ, तो वो मत कीजिए जब तक राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि आपको मॉनेटरी फ्रॉड होने की भी संभावना होगी आपके साथ। एक नज़र शनि पे डालते हैं। देखिए, शनि अष्टम भाव में, वो भी वक्री हैं अक्टूबर के महीने में। अष्टम लॉर्ड जब अष्टम में बैठता है तो व्यक्ति के लिए मुसीबत लाने का कार्य करता है। लेकिन अगर आप अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्य कर लेते हैं, जैसे आप एक रिसर्च टाइप का माइंडसेट अपना लेते हैं, यानी आप कोई भी निर्णय नहीं लेंगे जब तक आप सारे फैक्ट्स फिगर्स देख नहीं लेते, तो इस तरह का फिर शनि आपको एडवांटेज देके जाता है। देखिए, ज्योतिष में प्लैनेट्स का इस्तेमाल कैसे कर लेना, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की परिणाम देने की क्षमता भी अलग होती है, और महादशाएं भी विभिन्न प्रकार की चलती हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रहों का ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके लिए ज्योतिष जीवन की राह बहुत सुगम बना देता है। नहीं तो फिर व्यक्ति इस तरह के नेगेटिव परिणामों की वजह से जीवन में भुगतता रहता है। तो यहाँ पे शनि से डील करने का बेस्ट तरीका ये है कि हर निर्णय अपना नंबर्स पे बेस रखिए। जब तक आप सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ना देख लें कोई डिसीजन मत लीजिए। तो यहाँ पे व्यक्ति को हार्ड टाइम रिलेशनशिप के साथ फील होगा, क्योंकि ये आपके इन लॉज को दिखाता है। तो व्यक्ति के सास ससुर के साथ उसको सामंजस्य बैठाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अक्टूबर के महीने में। और अगर व्यक्ति किसी तरह का वारसा या इनहेरिटेंस ढूंढना चाह रहा है, या इस तरह का वो कोई चीजें खोज रहा है, तो उसमें भी डिले होगा, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठ के उसको अपना वसीयत के थ्रू या इनहेरिटेंस के थ्रू चीजें मिलने नहीं देगा आसानी से। अब महीने में आपको कुछ दिन ऐसे होते हैं जब व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। ये वो दिन होते हैं जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 से गुजरता है। जेमिनाई असेंडेंट के लिए है 1 अक्टूबर, पहला ही दिन है महीने का, 16 और 17 अक्टूबर, और 28 और 29 अक्टूबर। तो खास करके 28 और 29 दो दिन ऐसे हैं जब व्यक्ति को सेहत के बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति स्थिति को मैनेज कर लेगा, क्योंकि लग्न स्वामी का चतुर्थ भाव में बैठना और गुरु का दृष्टि उसके ऊपर पड़ना, तो कुंडलियों में लग्नेश और चंद्र को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि लग्नेश आपकी फिजिकल बॉडी को दिखाता है और चंद्र आपके थॉट प्रोसेस को दिखाता है। तो ये दोनों चीजें अगर व्यक्ति की अलाइंड हो, अच्छी हो, तो जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए व्यक्ति उनसे पार पा लेता है, और उसको जीवन में खुशी भी मिलती रहती है। तो यहाँ पे लग्नेश का चतुर्थ भाव में बैठना अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। ये आपके लिए इंश्योर करेगा कि आपका महीना ओवरऑल अच्छा ही निकले। आपकी समरी है अक्टूबर के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।